Welcome, my dear friends. Today we shall be talking about one more concentration term, that is molarity. Molarity is defined as the number of moles of solute, dissolved per liter of solution, per liter of solution. So number of moles of solute, कितने number of moles of solute dissolve किए गए हैं per liter of solution, we call it molarity. This is denoted by capital M. So mathematically we can write it. So molarity जो है M, that is equal to number of moles of solute means B divided by volume of solution in liters. हम solution यहाँ पे ले रहे हैं बाइनरी. जब हम बाइनरी सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ए दूसरा बी. ए हम कंसिडर करते हैं एज सॉल्वेंट और बी जो है दैट इज सोल्यूट. दैट्स व्हाई आई राइट हियर एंड बी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. If you take the volume of solution in ml, you have to multiply it by means of 1000. So we can get a new expression, that is, so m will be equal to number of moles of solute divided by volume. If you take in ml, you have to multiply here 1000. Where जो NB है number of moles of solute, that is mass by molecular mass, means mass of solute by molecular mass of solute. Once you put it here, you will get molarity. This is the expression for molarity of a solution. Now what do you mean by a 2 molar solution? Suppose you have a 2 molar solution, you have 3 molar solution. What they actually meant, so I want to tell you here is, suppose आपके पास है 2 molar solution. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, it means 2 moles of solute are present in 1 liter of solution. 2 molar solution का माने ये है कि 2 मोल solute जो है वो present है in 1 liter of solution. आप 2 molar solution भी लिख सकते हैं, और you can take 2 moles per liter of solution. Moles per liter is actually molarity. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको molarity दी हुई होगी, you can get to know how many moles of solute are there and what is the volume of solution. So two things you can get from molarity. Number one is moles of solute. In the present case it's 2, and you can get the volume of solution. In the present case it's 1 liter. So two things you can get from molarity. जैसे हमने पढ़ा था परसेंटेज में, अगर आपके पास 20% solution है, so उसका मतलब क्या हुआ? That means 20 grams of solute are present in 100 grams of solution. So you can get three things from that percentage. Number one is mass of solute, mass of solution, and mass of solvent. In this case also, 2 molar solution means you can get the moles of solute, that is 2, you can get the volume of solution, that is 1, because 2 molar here actually means 2 moles of per liter, means 2 moles of solute are there per liter of solution. This is what you can get from molarity. Another point to note is, now if molarity of a solution is 1, it's called a molar solution. It's called a molar solution. अगर molarity solution की है 1/10, it's called a decimolar solution. Decimolar solution. If the molarity is 1/100, then it's called as centimolar solution. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था in case of molarity also the same things. If it's 1/2, then it's hemimolar. Hemimolar solution. Hemimolar solution. This is what's called to be
molarity of a solution. So number of moles of solute dissolved per liter of solution, which means NB by V in liters. Take the V in ml, so you will get multiply 1000. Then you have this expression. 2 molar solution simply refers to that 2 moles are present in 1 liter of solution, which means you can get the volume of solution, you can get the moles of solute also. And now these are some of the molar solutions. If it's 1, it's molar solution. If it's 1 by 10, it's decimolar. If it's 1 by 2, it is hemimolar solution. Now the point is, we shall be talking about now some problems related to molarity. So question number 1 हमारे पास है, calculate molarity of a solution containing 5 grams of sodium hydroxide NaOH in 450 ml of solution. ये एनसीईआरटी क्या प्रॉब्लम है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है ये. सो सिंस आपको मोलैरिटी निकालनी है तो आप पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे. सो मोलैरिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई 1000. सो वॉल्यूम तो सोल्यूशन का दिया हुआ है, कितना? 450 ml ऑफ सोल्यूशन. अब मोल्स तो नहीं दिए हुए हैं, बट मास इज गिवन, सो यू कैन गेट द मोल्स फर्स्ट. सो मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू mass by molecular mass. So that's 5 by molecular mass of NaOH is 40. So 5 by 40. That is 1 by 8. So put the value here. Therefore, M will be equal to 1 by 8 whole divided by volume means 450 multiply 1000. तो ये जीरो जो है, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा. तो जब आप सॉल्व करेंगे, you will get a value that is 0.278. 0.278 is the answer. इतनी मोलैरिटी जो है, moles per liter. This is the molarity of solution. This is the molarity of solution. Very simple question. दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ. We'll take one more question. Question number 2 is, आपके पास है calculate molarity of 30 grams of कोबाल्ट नाइट्रेट. इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, दैट इज 291. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन लिखिए पहले. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन containing, we will rewrite the question. Calculate the molarity of solution containing 30 grams of cobalt nitrate molecular mass दिया हुआ है, that is 291 in 4.3 liters of solution. अब सीधी सी बात है, मोलैरिटी किसके बराबर है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स. अब देखिए, वॉल्यूम तो दिया हुआ है 4.3 लीटर. अब आपके पास मोल्स पता होने चाहिए. मोल्स किसके बराबर होते हैं? मास बाय मॉलिक्यूलर मास. सो मास तो दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, सो यू कैन इजीली फाइंड द मोलैरिटी. सो इसके बदले हम लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 291 होल डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज 4.3 लीटर्स. इस वक्त लीटर्स में दिया हुआ है, सो you do not need to multiply 1000 here because it is in liters. So you will get molarity will be equal to the, जब आप सॉल्व करेंगे, you will get the molarity of the solution. You will get the molarity of solution. एक और क्वेश्चन लेंगे. We'll take one more question. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है. कैलकुलेट, जो इसे ये वाली प्रॉब्लम, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है. उससे पहली वाली प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी थी, टेक्स्ट वाली प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम जो है, ये भी एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है.
So calculate mass of urea. Calculate mass of urea required to make 3 liters of 1 molar aqueous solution. मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में दिया हुआ है, आपको मास निकालना है सोल्यूट का. तो मोलैरिटी किसके बराबर होती है? सो व्हाट इज मोलैरिटी इक्वल टू? मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml या वॉल्यूम इन लीटर्स हम लिखेंगे. तो वॉल्यूम इन लीटर्स दिया हुआ है, मोलैरिटी भी दी हुई है, आपको मोल्स निकलेंगे. जब मोल्स निकलेंगे उससे हम इजीली मास ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं. तो पहले मोल्स निकालो. दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया विल बी इक्वल टू मोलैरिटी कितनी है 1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 3, इट इज इक्वल टू 3. जब मोल्स 3 निकले, दिस इंप्लाइज मोल्स किसके बराबर होता है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मींस मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 3. दिस इंप्लाइज मास ऑफ यूरिया जो है दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया कितना है? दैट इज 60. सो आपको आंसर निकलेगा 180 grams. So 180 grams is the answer. अगर आपको यहाँ दिखा नहीं है तो यहाँ से हम करेंगे. mass of urea will be equal to, तो mass of urea जो है that will be equal to 3 into molecular mass 3 into 60 that is 180 grams. इस तरीके से जो है आप easily प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. This was again the problem of NCERT. Now एक और क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. कैलकुलेट, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास है. कैलकुलेट m मीन्स मोलैरिटी, स्मॉल m मीन्स मोलैरिटी एंड x मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी हुई है दैट इज 1.2 ग्राम पर ml. क्वेश्चन क्या है? आपके पास कंसंट्रेशन दी हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट्स 20% पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन दिया हुआ है. आपको बताया जा रहा है आप मोलैरिटी निकालिए और मोल फ्रैक्शन निकालिए वंस डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन 1.2 ग्राम पर ml. सो पहले क्या करना है? आप पहले मोल फ्रैक्शन ही निकालिए. सो गेट द मोल फ्रैक्शन फर्स्ट और यू कैन गेट मोलैरिटी आल्सो. देखिए मोलैरिटी किसके बराबर होते हैं? m बिफोर चलो मोलैरिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. ये इसकी एक्सप्रेशन है. तो मोलैरिटी की एक्सप्रेशन क्या है? दैट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. और मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया जो है, यूरिया नहीं है पोटेशियम आयोडाइड है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड होल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. मतलब पोटेशियम आयोडाइड के मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. शाबाश. तो मोल्स जो है आप निकाल सकते हैं फ्रॉम परसेंटेज, बिकॉज परसेंटेज गिव्स यू 3 थिंग्स. नंबर 1 इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सोल्यूशन. जब मास ऑफ सॉल्वेंट में निकलेगा इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट निकला, तो मोल्स भी पता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यू कैन इजीली फाइंड मोलैरिटी. जब मास ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा तो मास ऑफ सोल्यूशन भी निकला. जब मास ऑफ सोल्यूशन निकला तो यू कैन इजीली गेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बाय मींस ऑफ दिस डेंसिटी और मोल्स भी निकलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट परसेंटेज गिव्स यू. सो 20% सोल्यूशन आपके पास है पोटेशियम आयोडाइड का, एक्वस सोल्यूशन है ये. दिस इंप्लाइज मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल टू 20 grams. मास ऑफ सोल्यूशन is 100 grams. Therefore mass of solvent कौन है यहाँ? वाटर, because it is the aqueous solution, that is 80 grams. Therefore मोलैरिटी किसके बराबर आएगा? मोल्स that is moles of solute means mass by molecular mass 20 है. molecular mass कितना है पोटेशियम आयोडाइड का? पोटेशियम आयोडाइड का molecular mass जो है that is 166. Then whole divide by
होल डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 80 ग्राम्स. सो 80 मल्टीप्लाई 1000. This gives you what? This gives you mass of, this gives you molality, this gives you molality of solution. एक दूसरा, आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड किसके बराबर होता है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास. मतलब मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड बाय टोटल मोल्स. मोल्स किसके बराबर होते हैं? मास बाय मॉलिक्यूलर मास मींस 20/166 होल डिवाइड बाय 20/166 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 मींस 80/18. जब हम सॉल्व करेंगे you will get the answer, that is moles of mole fraction of potassium iodide. Once mole fraction of potassium iodide is calculated, you can find the mole fraction of water also, because mole fraction of water जो है that will be equal to 1 minus mole fraction of potassium iodide. So mole fraction भी निकला, molarity भी निकली. अब आपके पास molarity निकालनी है. molarity के लिए वॉल्यूम होना चाहिए. वॉल्यूम तो पता है आपको. Since you know mass by volume is equal to density, this implies volume will be equal to mass by density. This implies मास कितना है सॉल्वेंट का, सोल्यूशन का, दैट इज, आप देख सकते हैं यहां मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम्स और डेंसिटी कितनी है 1.2. तो ये वॉल्यूम निकलेगा आपको ml में. जब वॉल्यूम निकला, देयरफॉर मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस 20/166 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स मींस 1.2 मल्टीप्लाई 1000, बिकॉज दिस इज इन ml. तो ये आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज मोलैरिटी. इस तरीके से जो है आप इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन इजीली सॉल्व प्रॉब्लम्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. यू कैन वॉच दिस मेनी टाइम्स, मूव दिस फॉरवर्ड बैकवर्ड, पॉज इट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. एक और प्रॉब्लम हम लेंगे, विल टेक वन मोर प्रॉब्लम. सो क्वेश्चन 5 हम लेंगे यहां, दैट इज आपके पास है 0.2 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन. आपको बताया जा रहा है फाइंड कैपिटल M मींस मोलैरिटी. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, दैट इज 2 ग्राम पर ml. सो आपको मोलैरिटी दी हुई है, आपको बताया जा रहा है आप मोलैरिटी निकालिए, लेकिन डेंसिटी दी हुई है. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट what molality gives you. Molality gives you, first of all, 0.2 molality means moles of urea. Moles of solute is equal to 0.2. तो 0.2 is the moles of urea. ठीक. और weight of solvent कितना है? Solvent कौन सा है? Water यहाँ, because it is aqueous solution, that is 1 kilogram. 1 kg is the solvent. Because 0.2 molar aqueous solution means 0.2 moles of solute are present in 1 kg of solvent. So that means weight of solvent is 1 kg, moles of urea is equal to 0.2. अब मोलैरिटी निकालने के लिए आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट पता होने चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता होना चाहिए. लेकिन आपको क्या पता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन? What is the, first of all you have to calculate mass of solution. तो जब ये सॉल्वेंट का मास है, तो इसका मतलब ये हुआ what is the mass of solution. मास ऑफ सोल्यूशन कब निकलेगा? जब आपके पास मास ऑफ यूरिया निकलेगा. देखिए मोल्स ऑफ यूरिया किसके बराबर है? मोल्स ऑफ यूरिया इज 0.2, देयरफॉर मास ऑफ यूरिया किसके बराबर होगा? सो सिंस मोल्स ऑफ यूरिया मतलब B is equal to 0.2, this implies mass of urea will be equal to 0.2 into molecular mass, because number of moles is equal to mass by molecular mass. Molecular mass will be multiplied to it, that is here. That gives you 12. 12 आपको निकलेगा यहाँ मास 12 grams. Therefore mass of solution इसके बराबर आएगा, that is mass of solvent plus मास ऑफ सोल्यूट. वो किसके बराबर आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इज कितना? 1 kg. 1 kg मतलब 1000 grams plus 12, that is 1012 grams. This is the mass of solution. जब मास ऑफ सोल्यूशन निकला तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी निकलेगा. Therefore वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, that is mass by volume is equal to density. तो volume is equal to mass by density, that is mass कितना निकला अभी? 1012 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है? 2. तो ये जो है आपको निकलेगी वॉल्यूम इन ml. जब वॉल्यूम निकला
Therefore you can find molarity, that will be equal to number of moles. Moles कितने हैं पहले निकाले थे आपने? 0.2. So 0.2 divided by volume, that is 1012 by 2 multiply 1000. This gives you the molarity of solution. So इस तरीके से जो है आप प्रॉब्लम्स को easily solve कर सकते हैं. One thing is important, that is जो भी concentration term आपके पास दी हुई होगी उसका मतलब पता होना चाहिए. उसका मतलब पता होना चाहिए. मतलब अगर आपके पास परसेंटेज दी हुई है, सो परसेंटेज देना का ये मतलब है आपके पास मास भी पता है, सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, सॉल्यूशन का. अगर आपके पास मोलैरिटी दी हुई है, इट मींस यू नो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यू नो द मास ऑफ सॉल्वेंट. अगर आपके पास मोलैरिटी दी हुई है, इट मींस यू नो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यू नो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो ये जो बातें हैं ये आपको पहले याद रखनी है, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट मोलैरिटी. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आई शुड टेल यू दैट मोलैरिटी जो है एंड दिस इज मोलैरिटी m जो है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम. क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर. इसका मतलब जो है मोलैरिटी चेंज होती है विद टेम्परेचर. मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, मोलैरिटी चेंज नहीं होगा, weight by weight percentage change नहीं होगा, because they include weights only. Weights do not change with temperature, but volume does change with temperature. That's why molarity changes. ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, याद करनी है. So I hope you understand this. If you like my videos, please do share and subscribe my channel. Thank you very much.